I welcome all the dignitaries on the dais, distinguished dignitaries from Finland, Kenya, Oman, USA, Australia, UK, UAE, head of the different universities, vice chancellor of the different universities, head of the different central research institutions, faculty friends from IIT, startup participant of the different part of country, my dear students from IIT Bhubaneswar. Today is a landmark day because today we put the foundation stone of a new Konark temple, the Research and Entrepreneurship Park. I am confident in future. You all are in a very historic place. During the introduction of the program, it was told half a century before of 1857, this place, when I am talking this place, dignitaries, this place means this place. We all are on the foothill of Barunai Pahad, Barunai Hill. On the fort of Barunai, the warrior of the then Kalinga or Utkal fought with Britishers for our motherland's pride and independence. They sacrificed their entire life. Bakshi Jagabandhu led the movement from this part of the state. In the western part of the state, Veera Surendra Sai, the similar time he fought for the motherland. So you all are in a historic place. You are very near to Konark. You are very near to Puri and Lingaraj temple. As my dear friend Ashish Chauhan was mentioning during his speech, they all are monument of innovation, monument of modern architect, the symbol of wealth and pride. That means yesterday I am thankful to my colleagues from AICT. They organized a fireside chat to share few ideas with young startups and investors, those who came yesterday evening. I said yesterday night, in Odia society, innovation is in the DNA of Odia society. In the 21st century, I am thankful to all the speakers. I am thankful to all the speakers. I am thankful to those who have come here and signed an MOU with IIT Bhubaneswar. I am thankful to my dear friend Ranjit Ratha, being a Odia, is the chairman of Oil India Corporation. He gave 5 crore rupees support investment to few startups. That means my application is there with you, Mr. Narendran. My application is there with you, Mr. Vivek Lal. And my application is there with you, Mr. Das. And all the corporated, those who are here. We have to handle our youngsters. Bandhugan, gata kali mu kahithili 100 cubes ra artha.
2036 जितेबाला ओडिशा भारतर प्रथम भाषा भित्तिक राज्य भावे 100 वर्ष पुरुथबो से समय रे एक भारत श्रेष्ठ भारत. टुडे फॉर मी the entire from last evening to till now, I am thrilled, I am delighted, I am full of joy because I see the bright future. I see the new idea, I see the innovation, I see the dynamism among the youngsters. But for me personally, when we plan about this event few weeks ago, I have suggested Professor Karmalakar ji, why don't you have a local IIT band? Let they sing a song, let they inspire with their own imagination. In a lighter mood I have suggested, but I am very much thankful to the band. I think that band is RO. From Harshraj to Soumyadeep. Bands are good, all music are good. But what they visualize for Utkal Pradesh. This is the Prime Minister's vision of Ek Bharat, Shrestha Bharat. You all are Odia now. यह आप सबकी जिम्मेदारी है. विश्व जब एक छोटी सी गांव बनते जा रहा है और विश्व की तमाम लोगों की भारत के ऊपर आस्था बढ़ रही है, दो चीज हो रहा है. विश्व टेक्नोलॉजी के कारण एक गांव बनते जा रहे, छोटी सी स्थान बनते जा रहा है. उस समय में भारत की नौजवानों के ऊपर, क्योंकि विश्व की समस्या का समाधान सब ढूंढ रहे हैं. विश्व की समस्या और विश्व की मनुष्य की आवश्यकता की चीज, पर्यावरण हो या खाद्य पदार्थ हो, पानी हो या ईज ऑफ लिविंग हो, ये सारे में जब विश्व की कलेक्टिव विजडम अपने खोज में है, उस समय में मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं. I am not exaggerating my ideas and views. Entire world is looking towards India because India has a demographic dividend. भारत में नई पीढ़ी सबसे ज्यादा भारत में ही है और हमें कहने के लिए कोई द्विधा नहीं है. जब इसीलिए मैंने उनको कोणार्क कहा. हजारों साल पहले हमारी समाज की सामूहिक पुरुषार्थ का प्रतिफलन कोणार्क था. निसंदेह भारत की नेतृत्व में 21st सेंचुरी में हमारी आईआईटीएन, हमारी एनआईटीज, हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज, एआईसीटी एफिलिएटेड इंजीनियरिंग कॉलेज विश्व की समस्या का समाधान निकालेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है. 100 क्यों, उसकी छोटी सी अंश है. 100 साल जब ओडिशा को पूरा हो रहा होगा, ओडिशा रे 100 जन उद्यमी ओडिशारू, तार अर्थ नुहे केवल ओडिया पिला, तार अर्थ ओडिशारू, ओडिशार भूमिरू आइडियाज को डेभलप करके ओडिया पिला निश्चित तार नेतृत्व नेबे. गतकाली अनेक बंधु को मु काली भेटिली. मो पाई उत्साह एई पाई 100 गुण है मोर मन भितरे. मु काली जो भलिया पिला मानकु पूरी अंचल नड़िया खोलपार को कंपोजिट मटेरियल बने कि फसिल फ्यूएल रो विकल्प मटेरियल यानी पेट्रोकेमिकल रो विकल्प मटेरियल बाहर करिवार ओडिया झियो ही तार नेतृत्व नउची. एईटा ही बड़ प्रेरणा. सस्टेनेबिलिटी रो नुआ नुआ आइडिया, सस्टेनेबिलिटी रो नुआ नुआ आइडिया आज आम राज्यर पिला माने भी वैश्विक आवश्यकता को ध्यान रखी करि पारुछन. ऐसे कैसे नहीं होगा? इसलिए होगा पिछले 10 साल से जिस प्रकार की
व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। मैं अगर दो ही स्टैटिस्टिक्स, इफ आई साइट 2 एग्जांपल्स, if I compare 2014 to 2024, there is a 32% increase in girls student enrollment. This is the achievement of last 10 years. Beyond that, STEM education is the priority education in the entire world today. 43% students, girl students are there in the STEM education. That means out of 100, 43 are girl students in our country. This is the highest number of girls participation in the entire world. This is our country. This is women-led development. लेकिन बैंड में एक ही लड़की था। ये बढ़नी चाहिए। और आज तो हम लोग इसमें निस्संदेह भारत में महिलाओं की नेतृत्व में विकसित भारत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसकी नींव आज भी रखी गई। मित्रों, कोई भी समाज की मूल अधिवासी अगर अपने चाह की बारे में, अपने डिजायर के बारे में, अपने एस्पिरेशन के बारे में अगर क्लैरिटी नहीं रखेंगे तो उसको एक आगे देखने वाला समाज नहीं कहा जा सकता है, उसको एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं कहा जा सकता है। मैं इसीलिए फिर आश्वस्त हूं, हम तो सूत्रधर है, हम तो यहां जैसे कहा गया एक स्टार्टअप की इकोसिस्टम, और प्रधानमंत्री जी आपने बयान में कहा भारत की समस्या का समाधान भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम में है। अभी मेरे मित्र चिंतन वैष्णव जी एक स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रख रहे थे, वहां भी उड़ीसा में लड़कियों की पार्टिसिपेशन ज्यादा है। 40% उड़ीसा की स्टार्टअप में लड़कियों की है। अभी भी हमने स्टेज में देखा जिनके साथ एमओयू हुई, उनमें से भी जिस पृष्ठभूमि की महिलाएं थे, ये भारत की एक नई दिशा को दर्शाती है। स्टार्टअप आज देश में 1,20,000 तक पहुंच गए हैं। ये भले ही आज 15,000 16,000 में एक हो, आने वाले दिनों में ये 1500,000 के अंदर एक होने वाला है, क्योंकि 10-15 लाख स्टार्टअप ऐसे ही दिखते दिखते बनेगा और उड़ीसा भी उसमें से आगे बढ़ जाएगी। और मैंने कमलाकर जी, मैं आपको एक ही निवेदन करूंगा, आज उड़ीसा में देयर इज नो डेarth ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ बैंकिंग लोन, in form of angel investment, in form of venture capital. I appeal to all my Udiya brothers. मेरे उड़ीसा के जितने सारे मित्र, मोर ओडिशार भाई माने जोठी जी अछंती, they should extend their cooperation. They should play their big brothers role to handle the startup ecosystem of Odisha. It may be 100 cube of IIT Bhubaneswar किंबा ओडिशा रे मोर सूचना अनुसार भुवनेश्वर ही केवल 15 रु अधिका गुणात्मक इनक्यूबेशन सेंटर अच्छे। विभिन्न भारत सरकार संस्था गुड़ी करे, विभिन्न यूनिवर्सिटी गुड़ी करे, विभिन्न रिसर्च इंस्टीट्यूट रे ओडिशा रे एनआईटी पाखरे आईआईटी पाखरे नाइजर अच्छी, ओडिशा रे आइजर अच्छी, एम्स अच्छी, बायोटेक्नोलोजी रो अग्रणी इंस्टीट्यूशन अच्छी, आईसीएमआर भलिया गोटे मौलिक फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट अच्छी, एटी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स अच्छी, एटी आईआईएमटी अच्छी, एटी कृषि उद्भावन रो, कृषि आविष्कार रो अनेक इंस्टीट्यूशन एटी अच्छी। We have to create an ecosystem. We have to interlink with each other. And I appeal, Mr. Kamlakar ji, IIT should take lead of all these initiatives. हमें कोई बाउंड्री खड़ा नहीं करनी है। हमारे IIT वाला सबसे अच्छा है, बाकी तो ऐसा ऐसा नहीं सोचना है। सबने अच्छा किया है, सब मिलकर कैसे और अच्छा करेंगे, तभी तो विकसित भारत होंगे, तभी तो 100 क्यू होगा, तब तो 2036 तक उड़ीसा में भी 100 नेटवर्थ 100 करोड़ की नेटवर्थ वाला
हमारी उद्यमी निकलेंगे। मित्रों, क्लैरिटी इसी में चाहिए जब समाज में वेल्थ क्रिएट होती है, वेलफेयर रहना तय होता है। और आज तो दुनिया तेजी से बदल रहा है। यहां बैठ के आने वाले 25 साल दुनिया क्या होगा, इसीलिए इंडस्ट्री यहां उपस्थित है। स्टील में, डिफेंस में, एनर्जी में आने वाले दिनों में क्या होगा, इंडस्ट्री को पता है। स्टूडेंट्स के मन में अमाप कल्पना है और अच्छे प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसको, जैसे हमारी अग्रवाल बता रहे थे, जो खुद एक स्टार्टअप चलाते, चैलेंज का है, वेयर लाइज द चैलेंज? ईज ऑफ प्रोसेस, ईज ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, ईज ऑफ एक्सेसिंग मार्केट, ईज ऑफ एक्सेसिंग फंड। अभी किसी ने मेरे को कहा, हमारी देश की व्यवस्था, कोई एक नया आइडिया लेके संजय कुमार जी या संजय मूर्ति जी के पास जाओ, ये दोनों अलग है। इसलिए मेरे दोनों मित्र है, दोनों शिक्षा विभाग के सचिव है, इसलिए उनकी, मेरे मित्रता का लिबर्टी उनके पास में लेता हूं। व्यवस्था की स्वभाव है, ये नहीं हो सकता कह देना। शिक्षकों की, फैकल्टी की दायित्व है ये कैसे हो सकता है, व्यवस्था को कन्विंस करना, तब जाके हमारे बच्चों की एनकरेजमेंट होगी और हौसला बढ़ेगी। जब इसकी रचना की जा रही थी, मैंने कहा था कि देखो, मेरा जो पिछले 2-2.5 साल का अनुभव हो रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, 2-3 चीज की गैप दिख रहा है। और आज जब मैंने सुबह नरेंद्र जी से आने के बाद बात कर रहा था, उन्होंने एक अपना, जिस फील्ड की जो होगा उसी फील्ड की टर्मिनोलॉजी में वो उनको चीज़ों को समझाएगा। उन्होंने मेरे को एक इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी रेडीनेस के बारे में उन्होंने एक इंडेक्स से मेरे को समझाया। बोले कि इंडस्ट्री किस प्रोडक्ट को पिकअप करेगा जिसमें अप टू लेवल 6+ आ जाएगी परफेक्टनेस की, उसको इंडस्ट्री उस आइडिया को पिकअप कर लेगा। हमारी देश के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी कहां तक है? हमारी देश के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी लेवल 2.5, 3, 4 तक ले जाना। 5, 6 कहां से आएगा? यही चैलेंज है। 5, 6 आएगा स्टार्टअप इकोसिस्टम से। स्टार्टअप एक रिस्क है। अगर मैं 100 क्यूब कह रहा हूं तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा 10,000 लोगों के ऊपर। 10,000 कहां से आएंगे? 10,000 आएंगे स्कूल से। मैं आप सभी को निवेदन करूंगा, आप एक बार इस एग्जीबिशन को देख के जाइएगा। उस एग्जीबिशन में मैं, मेरे मित्र विवेक लाल जी अमेरिका में एक बड़े कंपनी में, डिफेंस कंपनी की सीईओ है, उनको मैं 2-3 चीज छोटा छोटा समझा रहा था। बरगढ़ का ग्रामीण पृष्ठभूमि का लड़का, बरगढ़ इज ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट टाउन इन आवर स्टेट, he was very confident to explain a science project. My attraction to that boy is not what product he is showing. My attraction about that boy is about his confidence, about his clarity of science, about his thought process. इसलिए ये पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी NEP 2020 इंप्लीमेंट किया जा रहा है। We are coming out with new textbooks. My friend Sanjay Kumar ji is taking lead on all these front, how to create new generation textbooks, new generation aspiration from class, school days. From that point to marketplace, we have to recreate a new model that we are exactly doing in NEP 2020. This research and innovation park, innovation and entrepreneurship park is part of that. आज यहाँ इंडस्ट्री के लोग आए हैं, इन्वेस्टर भी आए हैं, और मैंने कहा था एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है फैकल्टी। मैंने कहा था मेरे ओर से अनुरोध करना है IIT की सभी फैकल्टी इधर आए, इस प्रोग्राम में। मेरे विश्वास है सारे फैकल्टी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपको आज एक ऑफर देके जा रहा हूँ, पॉलिसी में तो है, आप सब मिलियनर बन सकते हो, सच में बन सकते हो। मैं कोई आपको मजाक करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन पार्टनर बनाना पड़ेगा ऊपर वालों को, दोनों मिलके। अभी तो पॉलिसी ऐसे ही है, फैकल्टी कैन ऑल्सो बी ए इक्विटी होल्डर इन ए कंपनी।
दोनों अगर गुरु, पुराने समय तो गुरु सैक्रिफाइस ही करता था, शिष्य बढ़ जाता था। अभी लेकिन नया बदल गया, गुरु शिष्य दोनों को ही पार्टनर बनाना पड़ेगा। अभी पॉलिसी में हमने दोनों को पार्टनर बनाया। फैकल्टी परमानेंट है। मैं जो फैकल्टी कहता हूं, नॉट ओनली IITians, IIT फैकल्टीज, भुवनेश्वर में कम से कम 1000 इंपोर्टेंट फैकल्टी है, टैलेंट पूल है सारे फील्ड के, सारे भुवनेश्वर में। मैं इस शहर में पढ़ा हूं, बढ़ा हूं, मैं जानता हूं पर्सनली कई लोगों को। 1000 टैलेंट पूल है जिनकी सोच विश्व को प्रभावित करता है, लेकिन इसकी इकोसिस्टम बनानी पड़ेगी। ये काम IIT भुवनेश्वर की फैकल्टीज की है। आप दरवाजा को खोलना पड़ेगा, आप बाकी इंस्टीट्यूट की फैकल्टी को चाय पिलाना पड़ेगा, आप उनके पास जाके चाय पीना पड़ेगा। दोनों की जब दोस्ती होगी तब हमारी बच्चे, किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि ये कॉमन हॉस्टल बनाते हैं। इन दिनों में एम्स और IIT भुवनेश्वर की एक MOU हुई है कुछ डुअल डिग्री के लिए। उन्होंने कहा हॉस्टल बनाते दोनों के लिए, किसी भी कैंपस में, इधर या उधर। दोनों बच्चे जब हॉस्टल से आएंगे, क्लासरूम से आके हॉस्टल में रहेंगे, तब तो रात 3 बजे तक। IITians कितने बजे रात को सोते हैं आप लोग? सच बताना, 2 बजे, 2 या 3, 4? अब उठते कब हो? चलो जितना बजे उठो तो आपके ऊपर है, लेकिन आइडिया तो आएगा रात को 2 बजे। मैं इतना जानता हूं, आइडिया आएगा रात को 2 बजे, जगना तो पड़ेगा तब तक। लेकिन अगर मल्टी ऐसे मैं कभी, कल मेरे को RP सिंह ने बताया कि साहब रात को आते तो रौनक और कुछ होता। मैं जानता हूं कैंपस में रात पूरा रौनक भरा ही होता है। मेरे बातों का गलत अर्थ नहीं निकालना। मैं आइडियाज की रौनक कहता हूं, न्यू इनोवेशन की रौनक कहता हूं, और यहां एटमॉस्फेयर ऐसे होनी चाहिए। उड़ीसा की सारे टैलेंट पूल की इच्छा होनी चाहिए, लेट मी सी द रिसर्च एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पार्क ऑफ IIT भुवनेश्वर। यहां मैं सारे इंडस्ट्री के लोगों को, नरेंद्रन जी कम से कम आपका तो भाई, आप तो हमारे बड़े पार्टनर हो टाटा वाले उड़ीसा में, आप तो कम से कम, मैं अनुरोध करूंगा आप कुछ भी करो, आप यहाँ कम से कम 2 महीने में एक बार आके 15-20 मिनट यहाँ घूम के तो जाओ। हमारे यहाँ हेलीपैड भी है। मैं सबको अनुरोध करता हूं, इंडस्ट्री को यहां आना चाहिए, प्रॉब्लम लेके आना चाहिए, हमारे बच्चों में भरोसा करना चाहिए, हमारी फैकल्टी पे भरोसा करना चाहिए। उड़ीसा एक एग्रीकल्चरल बेस्ड स्टेट है। जस्ट आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ आवर कॉलीग हु हैज come with our invitation from MSc of Kenya. We are talking how we can do work together. She said, in the area of agriculture, we can work together. मित्रों, मेरे बात पे भरोसा रखो, आपकी स्टार्टअप की मार्केट प्लेस भारत में ही ग्लोबल होने वाला है, इमर्जिंग इकोनॉमी होने वाले हैं, ग्लोबल साउथ होने वाला है। इसलिए मार्केट की कोई चिंता नहीं है, चैलेंज है मेंटरिंग में। इसलिए मैं अंत में उड़ीसा संबंधित, मैं उड़िया नहीं कह रहा हूं, उड़ीसा संबंधित जो लोग हैं सभी मित्रों को मैं अनुरोध करता हूं, सब उड़ीसा की इस 100 क्यूब की इनिशिएटिव पे अपना पार्टिसिपेशन करने के अपना प्लान बनाएं। 2036 फिक्स है, चिंतन ने सही कहा, 2036 इज फिक्स, वो तो 12 साल में आ ही जाएगा। 100 लोग बन जाएंगे, ये मेरा भरोसा है। और जितना नहीं था, कल रात की AICT की फायर सेट चार्ज से अभी तक मैं कन्विंस हूं, और एग्जीबिशन दिख के पूरा कन्विंस हूं, आ ही जाएगा। लेकिन ये डीप टेक में आएंगे क्या यहां की फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वैल्यू एडिशन करके कुछ सस्टेनेबिलिटी के नए प्रोडक्ट बनाएंगे क्या? हेल्थ केयर की कुछ नया चीज लाएंगे क्या? इस प्रकार की जन आवश्यकता की क्या चीज ले आ पाएंगे? इसीलिए मित्रों, ये स्टार्टअप सिर्फ एक वेल्थ क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है,
ये नेशन बिल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विकसित भारत के लिए अपना अपना योगदान देने की आप लोगों के ऊपर ये बड़ी जिम्मेवारी है। आप एक ऐतिहासिक स्थान पे हो, एक ऐतिहासिक क्षण पे हो, जब दुनिया भारत को देख रहा है। और मेरा पूरा भरोसा है ये 100 क्यूब की एक छोटी सी बेबी स्टेप से उड़ीसा का विकास तो होगा ही, लेकिन देश की भी विकास होगा। इसी शुभेच्छा के साथ आज सभी पार्टिसिपेंट, सभी स्टेक होल्डर हमारी निमंत्रण पे यानी IIT भुवनेश्वर की निमंत्रण पे आप सब इकट्ठा है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much for your encouragement and support. We have now arrived at the last item on the agenda. It is time to propose the vote of thanks. May I request Dr. Shubhankar Pati, Associate Professor at the School of Minerals, Metallurgical and Materials Engineering and CEO of the Research Park, IIT Bhubaneswar, to kindly come forward. Namaskar. On behalf of IIT Bhubaneswar, I thank all the invited dignitaries on the dais and off the dais. We gratefully record